Hi, my dear students. Good morning. Hope all of you are keeping well and good. अपने इस लेसन इस चैप्टर का दो एक्सरसाइज कंप्लीट किया है रिलेटिव प्रोनाउंस में। मैंने जो आपको एक्सरसाइज करके दिया मैंने पहले आपको बोला था मेरे करने से पहले आप करके रखना है और कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछना है। लेकिन अभी तक 8वीं क्लास का कोई डाउट मेरे पास नहीं आया, जबकि 5th, 6th एंड 7th स्टूडेंट्स कोई भी डाउट है तो तुरंत मेरे को फोन करके पूछ लेते हैं। तो इधर दो ऑप्शन है, आप लोगों का कोई डाउट नहीं है या आप लोग कोई वीडियो वॉच नहीं कर रहे। पहले वाले प्रेफर कर रहा हूं मैं, आप लोगों का कोई डाउट नहीं है, राइट? ओके, इफ सो लेट अस स्टार्ट द थर्ड एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विथ suitable relative pronouns given in the bracket। ब्रैकेट में दिया हुआ प्रोनाउन से रिलेटिव प्रोनाउन से आप ब्लैंक्स फिल अप कर लो। ओके। I looked into the eyes of Fritz officer. I looked into the eyes of the Fritz officer. Dash approached me, hand outstretched। इधर एक पर्सनल प्रोनाउन आ गया, पर्सन आ गया एंड देयर अ वर्ब आ गया। तो इधर क्या आना चाहिए? बिफोर द ब्लैंक स्पेस a person is there and after the blank space a verb is there. So we should use who. I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand stretched out. Okay. Second one. Hans Wolf and I shared dash was left of our wonderful Christmas cake, honey. When a verb comes before the blank space, what we should use? What. Hans Wolf and I shared what was left our wonderful Christmas cake, honey. Clear? Here the verb comes before the blank space, that's why we use what. Okay. There was a moment dash I noticed our breaths mingling in the air between us. Moment, कोई भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के आगे अगर ब्लैंक स्पेस से पहले कोई भी पर्टिकुलर टाइम रिलेटेड मैटर्स आ गया एंड इन दैट केस वी यूज व्हेन। क्या है? व्हेन। देयर वाज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस आवर ब्रीथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। है समझ में? हियर व्हेन कम बिकॉज बिफोर द ब्लैंक स्पेस द टाइम period has been there. Okay, there was a moment when. Clear? Only the three children dash came with him were served. Only the three children or came. Children is personal pronoun and came a verb comes after the blank space. Okay na? So in that case we use who. Only the three children, a personal pronoun appeared before the blank space and after the blank space the verb is there. Okay? In that case we use who. The first one is also the same example, है ना? Then the fifth one. Then came the first giant wave. Wave is a thing, lifeless thing.
if a lifeless things come before the blank space, we use that. क्या है? That. या लाइफ एक गैन वेव, वेव मीन्स लहर, है ना? लहर is a lifeless things and it comes before the blank space, so we use the relative pronoun that. Then came the first giant wave that swept both of them away. दोनों को वहां से साफ कर दिया. ठीक है. Sixth one. I didn't know dash was happening. I didn't know what was happening. क्या हो रहा है? What? I didn't know what was happening. क्या हो रहे ये मेरे को समझ में नहीं आया. ठीक है. Seventh one. The Smiths later met other tourists. Now, and immediately after the blank space had lost a verb comes. So, what normally what comes? Who. Right? The Smiths later met other tourists who had lost entire families. Clear? Eighth one. It was I. Personal pronoun आ गया. It was I who fixed. वर्ब भी साथ में आ गया तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा? It was I who fixed up your railway booking for रांची. ये मैं वो है जो आपका टिकट रांची के लिए रेलवे टिकट बुक किया है. क्लियर? Ninth one. It's a joy. It's a joy. लाइफलेस थिंग है ना? तो आना चाहिए विच. अगर लाइफ वाला थिंग्स है तो हु और हुम और नहीं आएगा, और व्हेन आना है तो टाइम प्लेस आना चाहिए, है ना? सो इट इज अ जॉय विच लास्ट फॉर ए लाइफ टाइम. ओके. लास्ट वन. द मैन पर्सनल नाउन आ गया और सो ऑटोमेटिकली इट कम्स हु. पर्सनल नाउन प्लस द हैश वर्ब आ गया, है ना? द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन इज नेवर द सेम अगेन. क्लियर? दस कंप्लीट हो गया. सभी क्लियर? अब आपको इसमें ये क्यों आया, ऐसा डाउट आना चाहिए. अगर ऐसा डाउट आ गया तो क्लियर करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए. मैं यही फील करता हूं 8वीं क्लास का कोई भी बच्चा कोई डाउट लेके नहीं आया, जबकि 5th to 7th तीनों क्लास का बच्चा उनका कोई भी डाउट है तो मेरे को फोन करते या व्हाट्सएप में मैसेज करते. 8वीं क्लास का कोई बच्चा मेरा कोई डाउट लेके मेरे पास नहीं आया. तो मैं सोच रहा हूं आपका लेसन सिंपल है, इसलिए आप सभी समझ रहे होंगे, आपका कोई डाउट नहीं होंगे. ओके. नेक्स्ट लेट्स गो थ्रू एक्सरसाइज नंबर 4. I experience a change within myself dash can only be called mystical. Here myself is not important because I experience a change. चेंज एक्सपीरियंस किया है तो इधर क्या आना चाहिए? लाइफलेस थिंग. तो विच. आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल. ठीक है ना? हु अपन क्या एक्सपीरियंस किया? चेंज एक्सपीरियंस किया. चेंज को अपन हु या हुम नहीं कहते, विच जो अपन एक्सपीरियंस किया है वो ओनली कॉल्ड ए मिस्टिकल. राइट? द मैन
आगे बोलो मैन पर्सनल प्रोनाउन आगे पर्सनल नाउन आ गया एंड वर्ब आ गया आगे तो क्या आना चाहिए द मैन हु The man who has been to the mountain top becomes conscious in a special number of his own smallness in the large universe. Right? आया इधर who क्यों आया? Because there is a personal noun and after the blank space there has been a verb. Okay? Third one. He turned to the spot. He turned to the spot dash the fawn had emerged and dropped on all fours. वह अगर ब्लैंक स्पेस के पहले एक प्लेस आ गया तो ऑटोमेटिकली वहां क्या आना चाहिए जहां वेयर he turned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours. Okay, fourth one. You look at his eyes, a lifeless thing, eyes. A lifeless things appeared before the blank space. So automatically it comes which, right? You look at his eyes. वो आंख ठीक है which आंख आइस अकेले लाइफफुल नहीं है ना दैट्स वाई आंख आइस भी लाइफ थिंग्स है बट we specify the eyes then it will be a things okay which can speak okay before you like a lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside is the incandescence of a man. Okay? Sixth one. In the evening, it attacked one of Biju's cows but fled at the approach of Biju's mother. Here, cow has no importance because the last before the blank space it comes mother, a personal nouns, and after that the verb came come. Okay, इतना डिटेल्ड में अपन को देखना नहीं अपन को लास्ट व्हाट कम्स बिफोर द ब्लैंक स्पेस what comes before the blank space and what comes after the blank space the relative pronoun is based on that only okay so here a personal noun mother and the verb came as it so it come who right seventh one his mother told him a story हियर हिस या मदर का इंपॉर्टेंस नहीं है इधर स्टोरी का इंपॉर्टेंस मदर ने क्या बोला स्टोरी बोला है स्टोरी ए लाइफलेस थिंग्स सो ऑटोमेटिकली देयर कम्स दैट हिज मदर टोल्ड हिम ए स्टोरी दैट ऑन मदर हैड टोल्ड हर ठीक है वो उसका मम्मी ने उसको एक कहानी सुनाया जो उसको खुद की माँ उनको ऑलरेडी बोल चुकी थी ठीक है दैट द स्टोरी इज देयर इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाई दैट कम्स ठीक है बिफोर द ब्लैंक स्पेस स्टोरी कम्स ए लाइफलेस थिंग्स राइट एट वन ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन ए लॉन्ग कॉटेज ए प्लेस ए प्लेस प्लेस है तो ऑटोमेटिकली क्या आता है वेयर टाइम है तो व्हेन प्ले और प्लेस है तो वेयर और कोई भी लाइफलेस थिंग है तो दैट ठीक है द ग्रेट नाइन्थ वन
the great man was to dash has to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last. So the man was to bear, right? So the personal noun and a verb comes before and after the blank space. So who? Clear? The last one. The poet laid his finger in the book dash Ernest had been reading. Book, a lifeless thing. So here comes. So here comes that. तो इतना एक्सरसाइज करने से आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा ये रिलेटिव प्रोनाउन किस सिचुएशन में कहां कहां यूज होते हैं. ठीक है, जो अपन स्टार्टिंग में लेसन लर्न किया है उससे ज्यादा आपको ज्ञान मिल गया होगा अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने से. ये हर एक एक्सरसाइज ध्यान से रीड करना और स्टार्टिंग में उनका जो रूल्स दे रखा है कहां कहां कौन कौन सा यूज करना है ये दोनों साथ में आपको पढ़ना होगा ताकि इसका पूरा डाउट क्लियर हो जाएंगे. ओके, सो वी हैव नाउ फिनिश्ड आवर सेकंड चैप्टर ऑल्सो. ठीक है, अब आपका काम है ये दोनों लेसन लर्न करना, कभी भी इसमें से टेस्ट हो सकते हैं. ठीक है, थैंक यू.